The main purpose of this workshop or seminar, you can say, is to make you aware about the POCSO Act. How many of you are aware about it? What is POCSO Act 2010? Anyone? Yes, Mamta, you are dealing with junior students. It is just and to protect the child from sexual exploitation. So there are now code has been very strict, and there is no bail also if somebody is caused Making this kind of crime. Good. So, do you think this POCSO Act should be applied in schools? 100%. Is there any kind of need? Yes, it is required. Listening through various kind of media about the cases that are happening, even in the family. I think just 3 days before, I read one incident, maybe through Facebook or something. A grandfather, Yes. सबने पढ़ा होगा, grandfather was involved with his granddaughter, और वो उसको घर से ले भी गया. And when the girl was recovered by the parents, the girl was 6 months pregnant. Now just imagine. And imagine the condition of parents. Can they imagine that the grandfather can do like this? Never. अगर हम किसी बच्चे के फादर से भी बात करेंगे कि आपके फादर ऐसा कर रहे हैं, तो वो फादर हमसे लड़ेगा, वो ये कभी नहीं मानेगा कि माई फादर इज डूइंग इट. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर डेली इनटू मीडिया. ये तो चलो मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया, लाइव केसेस भी हमें पता है. ऐसे केसेस में क्या होता है, द विक्टिम जो भी बच्चा है, एक तो डिप्रेशन अलग चीज जाएगी, दूसरा सोसाइटी में तरह तरह की बातें शुरू होती है. इस वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स दे ट्राई टू हाइड दीज काइंड ऑफ केसेस कि बेटा किसी से बात नहीं करनी. बट नाउ द थिंग इज बीइंग इन स्कूल, we need to make parents also aware कि बात छुपानी है. पहली बात तो ये कि हमें बच्चों को अवेयर करना है कि व्हाट इज इट, किसके थ्रू हम कर सकते हैं, व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच. ये हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि विच आर द एरियाज विच आर नॉट टू बी टच्ड बाय एनीवन. हम एक्ट के थ्रू भी सिखा सकते हैं, वीडियोस के थ्रू भी सिखा सकते हैं. Jaspiran is still not here. Sharanjit, one video might be here. Achha, Jaspiran is here. Just watch this video first of all. Komal, the bus will be coming anytime now. Leave. This is me, Komal. I'm 9 years old. I love my school so much. Some of my friends are naughty at times. But even I'm naughty sometimes, na? Komal Kumar. My mama is fun, but she can be strict also. So what? She takes care of you also, na? Says Papa. But I still like Papa more. Hey, Bakshi! Hey, what a surprise! Papa's old friends, Bakshi uncle and auntie, are our new neighbors. Oh, hello. Who is this sweet little girl? It would have been better if they had children for me to play with. Thank you. Bakshi uncle is dropping me to school. Papa was getting late to work, na? That's why. Uncle is very sweet. Auntie is a very busy woman. But uncle works from home only. They have such a nice house. And it is full of pretty things. Wow, unicorn! It's okay. You can tell Mama you got it from me. Or you don't have to tell her. Even Papa doesn't play with me so much. Bakshi uncle is so much more fun. Where is my little doll? Where did she vanish? Oh, you must be here. Yes, gotcha. He even took me out to eat gola once. Please don't tell Mama. She might get angry. She's strict, na?
I wanted to tell Mama, but I was afraid. So what if I had Gola? Anyway, all my friends eat it. Hey, you want to play a new game? A secret game. Yeah, that will be fun. Come with me. What are you doing, Uncle? What kind of game is this? I'm totally confused. It felt dirty. Why did Bakshi Uncle do it? I feel so dirty. Komal? Is everything okay? Hello, Mrs. Kumar. I wanted to speak to you regarding Komal. Beta, why are you sad? Did someone say anything to you in school? What happened? Did someone hurt you? If you don't tell me, my dear, how can I help you? I have secrets. I have lied to you about the Gola. And now this. I feel very dirty. You would be very angry if I told you what I have done. No, I promise you I won't be angry. I love you, don't I? Then trust me. He is not a nice uncle. Which uncle? No, wait. Everyone will know. Then what can we do? Whose help can we seek? We can't let Bakshi get away with this. Childline. My friend Priya works there. They help children. 10, 9, 8. Hello. Komal, I know what happened to you was not your fault at all. We will ensure that your Bakshi uncle can never see you again. Let me show you how to keep yourself safe. Hi kids! How are you all today? Good morning, Didi. Have you ever been in a situation that made you feel uncomfortable? Yes, Didi. When my little dog chews away my shoe, I get very angry. That's true. What I mean is, has anyone touched you in a way that made you uneasy? Which of you have experienced this? So then, how do we know if someone is doing something wrong or touching us the wrong way? Here, let me explain. We all need to have our own personal space in our body. There are 4 zones which should not be touched by anyone, and nor should you touch anyone else's part. Mouth, chest, the part between your legs and buttocks. These are your personal spaces. Only the most trusted people, like your mother, may see and touch you in your personal spaces. So tell me, when you come home from school and your mama gives you a hug, how do you feel? Sometimes she smells of vegetables. Yuck. But don't we feel very nice? Yes, we do. Your mother may touch you in the 4 zones while giving you a bath. Or sometimes Dr. Uncle checks you in Mama or Papa's presence. This touch keeps you clean and healthy. When we are touched by someone who loves us and cares for us, we call it safe touch. If anyone else touches you in one of the 4 areas, it is wrong. It could also make you feel shy, scared, yucky, uncomfortable, and unhappy. Someone could show you dirty pictures or film,
or make you undress, or they touch their personal parts in front of you. All such actions are not safe for you, and we call them unsafe touch. Some people do such things even though they are not good for you, and you feel hurt. So then what will you do if someone touches you in these places? You should shout, "No, no!" and run to someone you trust and tell them. Who is that? You tell me, whom do you trust? My pet dog! Yes, you can tell your pet, but will he understand you? Will he be able to help you? I trust my mama and my teacher. So, if someone ever touches you in a way that makes you uncomfortable, you must tell someone you trust and keep telling them until they listen to you. By talking to the person you trust, whether it is your mama or your papa, you can help to make sure it never happens to you or any other child again. You should also know about Childline. If you dial 1098 and ask for help, a trusted person will come to help you. Always remember, it is never your fault that someone touched you wrongly. It is the fault of the person who did it. Never be afraid to speak your mind. If someone is harming you, speak up. Don't worry. You are safe. Just tell me what happened. Remember, if you or any of your friends are feeling trapped in a situation like this, there is always help available. Call me on 1098 and Childline shall be there for you. Kind of videos basically alarm. Can we imagine? These things can happen, but it happened. Most of the cases happen in the family. बच्चे को पता ही नहीं होता, उसको क्या लगता है ये तो मेरे अंकल है, ये तो मेरे मामू हैं, बड़े केसेस होते हैं, ये तो मेरे चाचू हैं, ये तो मेरे दादू हैं. But the thing is, how we can teach our children which are your sensitive areas, how you can say no to anyone if somebody is touching your area. Most of the schools are not taking these kind of issues, and most of the parents are even not discussing it with children because they all feel shy. Okay, this is not a matter to be discussed with children. And why? Because they mix it with sex education. We will be talking about sex. No, it is entirely different. अगर हमने अपने बच्चों को नहीं बताया तो हमारे बच्चे विक्टिम बन सकते हैं या हो सकता बन चुके हैं. We never know when. First thing, I am making one circular for parents also that I will be sharing with the parents how they can talk to their children. क्या क्या symptoms हैं. अगर आपको अपने बच्चे में कुछ चेंज नजर आती है, even being teachers, you can judge your students in the classroom. Suppose a child is very intelligent. Sometimes you also come and मैम बच्चा इस क्लास तक तो बहुत अच्छा था, उसके बाद पता नहीं अचानक से उसको क्या हो गया, या वो बहुत चुप रहने लगा, बच्चा किसी से बात ही नहीं करता, सॉर्ट ऑफ थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है बच्चे को, वो आई कांटेक्ट नहीं करता, हमेशा अपनी आई डाउन रखता है, अकेले रहना पसंद करता है, किसी से बात नहीं करता, उसकी डाइट कम हो रही है. सो देयर आर सिम्टम्स विच शुड अलार्म पेरेंट एंड टीचर बोथ कि ये बच्चे में ऐसी चेंजेस क्यों आ रही है. हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को निगलेक्ट कर देते हैं कि ये पहले पढ़ता था तो कुछ करता ही नहीं है, और वो बच्चा अंदर अंदर से इतना घुट रहा होता है कि वो किसी से अपने मन की बात नहीं कर सकता, और धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा खुद को ही गिल्टी मानता है कि ये मेरा ही कसूर, जबकि उस बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं. सो वी नीड टू टॉक टू चिल्ड्रन. जो सर्कुलर मैं बना रही हूँ दैट विल बी शेयरिंग विद द पेरेंट्स ऑल्सो, so that they can talk to their children even at home
and they can take care कि my child should not be with anybody else, with any stranger जिसको हम अंकल आंटी कुछ भी आप बना लो. अभी आपने एक और भी आई थिंक न्यूज सुनी होगी पीछे में, इवन टीवी में भी ये न्यूज थी, बहुत मीडिया में रही है. वन गर्ल, शी वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स, ट्यूशंस वो ले रही थी, एंड शी वॉज इन्वॉल्व विद द यंगर बॉय हु वॉज हर स्टूडेंट, और वो उसको लेकर ही चली गई और पेरेंट्स को भी कुछ नहीं पता. एंड आफ्टर दैट पुलिस प्रेस, वो जयपुर से शायद मिले, पुलिस प्रेस्ड एंड देन दे कम टू नो कि द गर्ल वाज हैविंग रिलेशन विद दैट बॉय, और वो उसको कंपेल करना, यू कैन से कंपेल करती थी उसको, और उस बच्चे को कुछ नहीं पता. मैं ये नहीं कहूंगी, मेल फीमेल दोनों ही आज के टाइम में रिस्क पे हैं और दोनों ही विक्टिम. अगर आप ऐसी न्यूज सुनोगे तो आपको पता चलेगा सोसाइटी में हो क्या रहा है. तभी हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को हमें अवेयर करना कि मीडिया का यूज कैसे करना है, क्या कंटेंट देखना है, क्या नहीं देखना है, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर देम. ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं? फिर वही मेंटल वेलबींग की बात आ जाएगी कि हमारे बच्चे एज से पहले वो चीजें सीख रहे हैं या वो कंटेंट वॉच कर रहे हैं जो उन्हें नहीं मिलता. एक्सपोजर बहुत ज्यादा है. कई बार घर का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि पेरेंट्स ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि बच्चे बहुत सारी चीजों के लिए अवेयर हो जाते हैं. तो हम इन चीजों को लाइटली नहीं ले सकते. स्कूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है. सो वी हैव मेड वन स्कूल प्रोटेक्शन पॉलिसी ऑल्सो, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, कि अगर कोई, आई नो माई स्टाफ इज वेरी वेरी गुड, बट फिर भी अगर स्कूल में कोई ऐसा क्राइम होता है, इफ वी फाउंड समवन गिल्टी, तो immediate action will be taken against that person, he or she, whosoever that person is. Second, if we come to know about any case in the school, चाहे वो घर पे ही कुछ बच्चे के साथ हो रहा हो, बट बड़े प्यार से, इसमें काउंसलर का रोल बहुत ज्यादा रहता है कि हाउ टू काउंसल द चिल्ड्रन, कैसे बात करनी है. वी नीड टू टॉक टू द चाइल्ड ताकि बच्चा आपके साथ ओपन अप हो, आपको ये चीज बताए इफ द चाइल्ड इज हैविंग सम काइंड ऑफ इशू. तो उस चीज को भी हमने डायरेक्टली हैंडल नहीं करना है, सिर्फ पहले बच्चे से बात करनी है, देन वी विल कॉल द पेरेंट्स कि हाँ कुछ ऐसा ऐसा पहले बेस बनाकर, ताकि डायरेक्ट अटैक ना हो. अदरवाइज वो पेरेंट्स आपको ही उल्टा पड़ेंगे कि आप ब्लेम कर रहे हो फैमिली मेंबर्स. सो देयर आर सम रूल्स दैट आई रियली वांट टू शेयर विद यू, एंड दिस मैनुअल विल बी अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी. सॉफ्ट फॉर्म में भी हम आपको सेंड करेंगे, and it will be available in the library. You all must study it. सबसे पहले तो I think each class teacher can do this thing with the students till primary age. I think till 5th class तो we can do it. 6th onward बच्चे थोड़ा grow कर जाते हैं तो हम directly बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं. 5th class तक each teacher will talk with students about good touch, about bad touch, which are your areas not to be touched by anyone. अगर हम इसको डायरेक्टली नहीं करवा सकते, आप कुछ छोटा सा प्ले करवा लो, प्ले के थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हैं. कोई नुक्कड़ नाटक करवा लिया, कोई वीडियो दिखा दो. लॉट मैनी वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. वो बच्चों को दिखाओ, अवेयर करो. फिर आप उनको बताओ कि बच्चा आपके साथ इतना फ्रेंडली हो कि बच्चा आपको बता सके अगर इन केस फिर प्रॉब्लम, तो आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा. एंड स्पेशली माई सीनियर टीचर्स, आपके केस में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरह से बढ़ जाती है. छोटे बच्चों में ये है कि वो किसी को बता नहीं पाते, बड़े बच्चों का भी यही है कि इन केस दे आर इन्वॉल्व समवेयर, तो वो डरते रहते हैं. या फिर उसके बाद में क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि किसी ने सुसाइड कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई अटेम्प्ट करी है, या ड्रग्स के चक्कर में पड़ गए. क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को मिटाना चाहते हैं. तो अगर आपको किसी के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नजर आते हैं, यू नीड टू टॉक टू. ठीक है. अब सबसे पहला जो पॉइंट है काउंसलिंग के लिए ही आता है. काउंसलर शुड मेक श्योर दैट पेरेंट्स बिगन टू टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट बॉडी सेफ्टी between age 3 to 5. I take it as a challenge for the school because parents are not going to teach. Let us make it mandatory to give this safety education to nursery, LKG, UKG and first class. Mamta, it should be added in the curriculum. It should be added in the curriculum. Make it mandatory as we are
making so many annual pedagogical plans about value, what is the learning outcome, what is the value outcome, but this is the thing which should be taught to students. Mandatory thing. Nursery, LKG, UKG first, it should be part of your education. अगर आप बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर देते हो बच्चों का, वो बच्चा बड़े होकर बहुत अलर्ट हो जाएगा, उस बच्चे के साथ कभी कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता. एंड ड्यूरिंग PTMs you can talk to parents also कि even at home they should be careful, they should be alert. Make it a mandatory PTM point. Discuss it with parents. इसमें कोई शाइनेस नहीं कि हमने बात नहीं करनी है, हमने करनी है इस बारे में बात पेरेंट्स के साथ कि दे शुड बी अलर्ट एट होम. कई बार क्या होता है पेरेंट्स, ये तो हमारे नेबरहुड में ही है, बहुत देर से हम जानते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बच्चा अकेला चले जाता है खेलने के लिए, तो वो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से बच्चा इन्वॉल्व है तो वो एक क्राइम ही है उस बच्चे के लिए. टीच चिल्ड्रन प्रॉपर नेम्स फॉर ऑल बॉडी पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे को पहले हर पार्ट का नेम सिखाना आप लोगों ने. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लेट इट स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट, इंक्लूडिंग नेम्स जो भी है वो आपने सारे पार्ट्स उनको बताने हैं. टीच देम दैट प्राइवेसी, पर्सनल बिहेवियर्स एंड बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेंट. किस लिमिट तक उनको कोई टच कर सकता है ये आपने उनको बताना है. अगर ये टच है तो यहाँ तक ये ठीक है, इसके बाद ये ठीक नहीं है. इवन फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, इवन फॉर पेरेंट्स. आप फॉरेन के स्कूल में चले जाओ, वहां पर आपको जो बच्चा फर्स्ट ईयर में ही स्कूल में जाएगा, वो बच्चा, आई रिमेम्बर मेरे नीस की बेटी, स्कूल में उसको सिखाया गया व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच. आपको आपके फादर भी कहाँ कहाँ पर टच कर सकते हैं. अब जैसे वो बेड से गिरने लगी तो उसके पापा ने उसको जैसे यहाँ से पकड़ के एकदम से ऊपर कर लिया कि गिर ना जाए. इमीडिएटली शी शाउटेड डोंट टच मी हियर, दिस इज माय प्राइवेट पार्ट. मक्की वो बच्चे ने अपने फादर को भी शाउट कर दिया कि यू कांट टच मी हियर. इतना स्ट्रॉन्ग अपने बच्चों को बनाओ इन चीजों के लिए, अवेयर करो उनको, सो दैट दे कैन शाउट, दे कैन स्पीक. ये तब होगा जब हम रिपीटेडली ये ट्रेनिंग स्कूल में बच्चों को देंगे, बार बार इसके बारे में बात करेंगे, तभी बच्चा अलर्ट हो जाएगा. फिर वो फटाफट अपने घर में भी रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये सिचुएशन मेरे लिए कैसी है. नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट पॉइंट, लेट चाइल्ड नो दैट सेइंग नो इज ओके एंड द राइट थिंग टू डू. बच्चा नो कहना भी सीखे. डू नॉट फोर्स द चाइल्ड टू गिव हग्स और किसेस. ये भी बच्चे को सिखाओ कि अगर कोई जबरदस्ती आपके साथ हग करने की कोशिश करता है, किस करता है, इट इज नॉट अलाउड. अगर आपके फादर भी आपको किस करते हैं, किस एरिया में कर सकते हैं. अगर कोई आउटसाइडर जैसे हम कहते हैं माथे पे, दैट इज ओके. ये चीजें बच्चों को हमने सिखानी है. Ask the parents to talk to the children about personal safety during bath time, teaching the child to wash himself or herself bedtime when they are focused on what the parent is saying. Before going to camp, starting school, going to daycare. तो ये पेरेंट्स को भी आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये सेफ्टी के जो पॉइंट्स है बच्चों को सिखाने भी है, बार बार डिस्कस भी करने हैं. एंड टेल देम टू अवॉइड सेंडिंग चाइल्ड आउटसाइड द होम. लेट द चाइल्ड बी एट होम, लेट द चाइल्ड प्ले एट होम. अब वो टाइम नहीं रहेगा वी कैन सेंड चिल्ड्रन एनीवेयर टू प्ले, नो. नेक्स्ट इज रोल ऑफ द स्कूल. इसमें क्या है, अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे, मैं पूरा एलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे सेक्शंस हैं. जिसके रन कर रही थी वो खुद हैरान हो गई कि मैडम ये इतना टिपिकल है, इतने इसमें पनिशमेंट है, इतने इसके सेक्शंस बने हैं, पूरा ये लॉ है. तो वो सारे सेक्शंस आपने पढ़ने हैं. अगर ये क्राइम होता है तो उसकी पनिशमेंट क्या है, कितनी देर की है, फाइन क्या है उसकी, दैट इज गिवन है. हम आपको सॉफ्ट कॉपी भी उसके लिए आपके साथ शेयर करेंगे. नाउ थिंग्स टू बी फॉलोड बाय द स्कूल. All employees to sign a copy of the terms and conditions related to child protection after they join the school. हमने पहले नहीं करा था, but from today onward we are going to do it. Today you all will sign a policy, that is child protection policy. Clear boundaries need to be defined in interaction between staff and child. Staff और बच्चे में भी एक डिफरेंस रहना चाहिए. ये बाउंड्रीज भी सेट होनी चाहिए. चाहे सपोज करो बच्चा ग्राउंड में खेल रहा है, यू पीपल शुड नो कि मैं बच्चे को किस हद तक जाकर पकड़ सकता हूँ या कह सकता हूँ या सकती हूँ.
वो आप लोगों को माइंड में रखनी है। इंस्टॉल CCTVs इन classrooms and in school premises and ensure that their feed is monitored. As I always say कि keep on monitoring। एक होता है कि हमने रिकॉर्डिंग चेक करी। I always believe कि रिकॉर्डिंग पे जाने की जगह लाइव मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि कोई इंसिडेंस हो ही नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमेशा इंसिडेंस होने के बाद हम चेक करते हैं। इसीलिए मेरा ज्यादा जोर आपके ऊपर रहता है कि आप लाइव मॉनिटरिंग करते रहा करो, बार बार क्लासरूम्स को चेक करो, कॉरिडोर्स को, कभी कोई कैमरा ओपन कर लिया, कभी कोई कर दिया, बच्चा ग्राउंड में देखो, अकेला बच्चा है, कहाँ पर है, क्यों है, इमीडिएटली यू कैन इन्फॉर्म अस। सुपरवाइजर्स के साथ आप इन टच करो, आपको कहीं भी कोई लगता है कि देयर इज एनी पॉइंट। Lay down policies and safe boundaries around photographing children, using photographs of children, internet and technology usage within the school premises. आजकल ये AI का एक बेनिफिट भी है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है कि कोई भी आपकी पिक अगर अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, उसको उठाकर आपकी कोई भी पिक बन सकती है और इवन आपके लिए कोई भी रॉन्ग वीडियो तक रेडी की जा सकती है। सिर्फ हमने ChatGPT को या किसी भी जेमिनी को, कुछ भी आप कह लो वो टूल है, इंस्ट्रक्शन देनी है कि क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियो फॉर दिस पर्सन। अवॉइड करो पिक्चर जो है कहीं भी सोशल मीडिया पर ना जाए। हम स्कूल में क्या करते हैं, बच्चों की पिक्स डालनी पड़ती है। एक तो चलो कोशिश करो ग्रुप्स में ही जाया करें वो पिक्स जिसमें कुछ ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, और जो सोशल मीडिया ऐसा हो या उसको रिस्ट्रिक्ट करो। उसमें काफी आई थिंक आप लोगों को, IT वालों को पता होता है कि फोटोग्राफ पे भी सेफ्टी वो लॉक लग जाता है कि वो पिक्चर डाउनलोड नहीं हो सकती, ना ही स्क्रीनशॉट हो सकता है उसका। वो सारे सेफ्टी मेजर्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे कि किसी की भी पिक ना तो डाउनलोड हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट कोई भी ले लेता, स्क्रीनशॉट भी उसका नहीं लिया जा सकता। अब आप बैंकिंग में जब करते हो तो वो स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देता, वो अलर्ट उसी समय आ जाता है। तो ऐसे कि आप लोगों को भी कंडीशंस उस पर लगानी पड़ेगी। बच्चों की फोटो, जैसे हम अपने बच्चों की फोटो आई थिंक बच्चों के प्रोफाइल पे भी रहती है, चलो प्रोफाइल तो फिर भी दैट इज ओपन बाय द पेरेंट्स ओनली। जो हम सोशल मीडिया पे पिक्स डालते हैं उनके लिए आपको ये सेफ्टी नॉर्म्स देखने को, ठीक है। और इवन आप लोग अपनी भी, मैं बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू ऑल्सो। बेस्ट से बेस्ट DP हम अपनी लगा देते हैं उसके ऊपर, होता है सारे एक जैसे हम लोग, बट मत लगाए। DP बड़े इजीली कोई भी आपकी कैच कर सकता है और बाद में फिर हम लोग पछताते हैं कि ये क्या है। तो आज वो टाइम नहीं है कि हम मीडिया पे अपना कुछ भी लगा सके। अगर लगाना है तो विद सेफ्टी मेजर्स, कि वो ना तो डाउनलोड हो, ना ही उस पर क्लिक किया जा सके। नेक्स्ट इज अरेंज फॉर रेगुलर सेशंस और पर्सनल सेफ्टी विद ऑल चिल्ड्रन, दैट वी विल डू। मैं आपको इसलिए अवेयर कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के साथ फर्दर बीइंग क्लास टीचर यू कैन टॉक, क्योंकि बच्चे जितना क्लास टीचर के साथ फ्रेंडली और अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं वो किसी और के साथ नहीं करते। Orient all staff members on detecting the warning signs of sexual abuse among children. Train all staff members and support staff on child protection norms and child sexual abuse prevention. जैसे आपका एक सेशन लिया, इसके बाद हमने क्लास 4 का भी करना है। Engage in active dialogue with parents and help ensure that parents are aware of the issues faced by children. आप suppose you find any case in the school, उसके बाद ये भी नहीं कि हमने उसको हाइड करना है। If we are hiding any case from the parents or from the police, then we are also a party of the crime. अगर आपको ऐसे किसी केस के बारे में पता है कि किसी के साथ ऐसा क्राइम हुआ है और हम उसे नहीं बता रहे हैं, देन यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्राइम, आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। सो डू नॉट हाइड दैट। Through monitoring of activities of all teachers, visiting faculty and stages by their immediate supervisors, an internal vigilance committee may be constituted. हमने आई थिंक स्कूल में कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, बट नाउ वी नीड टू बी एक्टिव। क्लास टीचर्स के साथ जैसे रेगुलर हम उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं कि हैव यू एनी डाउटफुल केस इन योर क्लास जहाँ पर यू आर फाइंडिंग एनी चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड।
then you can recommend that case to the school counselor. Further, counselor can interact with the child. We need to be more alert about all these things. Ensure children leave school only with parents or authorized person. इसीलिए हमेशा कहते हैं कि बच्चा या तो पेरेंट्स के साथ जाए, या जैसे हम बस के थ्रू भेजते हैं, ड्राइवर्स को भी हम अब काउंसलिंग करेंगे कि ये चीजें इतनी लाइटली लेने वाली नहीं। अगर कोई पेरेंट्स मान लो, जब बच्चा कहता है ये मेरा मामा है या चाचा लेने आया है, डू नॉट सेंड एनी चाइल्ड विद दैट पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क फॉर द आईडी कार्ड, पेरेंट आईडी कार्ड. इफ दैट पर्सन सेज कि मुझे पेरेंट्स ने आईडी कार्ड नहीं दिया, इमीडिएटली कॉल द पेरेंट कि सो एंड सो पर्सन इज देयर. मुझे याद है एक बार हमारे स्कूल में भी कुछ हमें ऐसा कोई कॉल आई थी कुछ, तो उसमें क्या है, आप पहले तो उस पर्सन के फोन से ही कॉल करो, अपने से नहीं करनी है. उसी पर्सन के फोन से नंबर आप टैली कर लो कि वो सेम है पेरेंट का, उस पर्सन के फोन से बात करो कि सो एंड सो पर्सन इज देयर, हैव यू सेंड. बोलो इस बार तो भेज रहे हैं, आगे से हमें आईडी कार्ड के बिना हमें नहीं भेजना, चाहे आपका बच्चा यहाँ हमारे साथ रहे, हम घर ले जाएंगे, बट बच्चा हम किसी अननोन पर्सन को नहीं देंगे. सेम इंस्ट्रक्शंस आई हैव टोल्ड न्यूटन गेट कीपर के लिए कि गेट कीपर हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. जब कोई पेरेंट अंदर आते हैं पहले आई कार्ड चेक करो. इवन आजकल जो टाइम चल रहा है, द कार शुड बी चेक्ड प्रॉपरली कि कार के अंदर कुछ है तो नहीं. मान लो स्कूल के अंदर कोई कुछ लेके ही आ गया, वी कांट डू एनीथिंग, तो सेफ्टी कहाँ चली गई. So we need to be very very strict. There are a few cases where we have got applications from parents regarding some legal case going on. So in such cases also we have to be where the child is not sent with anybody. That information is to be given to all subject teachers, class teachers, supervisor, then liaison officer, reception and at gate. That information is to be circulated to each and every person. Then next is what we can do in the school. We can make our classrooms more comfortable, more safe, where nobody else is allowed to come without permission of anybody else. Even we can take care of the grounds that no outsider should come when the children are playing. We have to take some safety measures in the school to make it more safer. And toll free number 1098, we all are aware. अब इसको हमने लिखकर बोर्ड में लगा भी देना है, और बच्चों को हमने क्या करना है, वैसे हम कहते हैं रोड लर्निंग पे नहीं जाना, पर ये नंबर तो बच्चों को रखवा दो, पूरा क्रैम करवाओ कि दिस इज द नंबर वेयर यू कैन कॉल इन केस यू आर इन सम ट्रबल. दिस इज द नंबर 1098 वेयर यू कैन कॉल, एंड दैट पर्सन विल नॉट एट ऑल हार्म यू, दैट पर्सन विल एक्चुअली हेल्प यू. जैसे हमने वीडियो में देखा, दे कॉल एट 1098, दैट लेडी केम. द थिंग इज, हमने उस बच्चे के साथ बहुत प्यार से बात करनी है, उस बच्चे को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है. एंड वन मोर थिंग, सपोज देयर इज ए केस, उस केस में यू शुड बी अवेयर कि व्हेन यू कॉल समबडी, और आप पुलिस में भी केस अगर हम रजिस्टर करवाते हैं, फर्स्ट थिंग, पुलिस कैन नॉट टेक द चाइल्ड टू द पुलिस स्टेशन, कभी भी नहीं भेजना. The police has to come to the place of the child to register the complaint or to take statement of the child. And the statement of the child should also be taken in the presence of mother and father, or in the presence of the person whom the child trusted. ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम सबको ध्यान में रखनी है. पॉलिसी जो है वो हम आपको दे रहे हैं, दैट विल बी साइंड बाय ऑल ऑफ यू. इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम करते रहेंगे तो इट विल टेक आई थिंक 2 to 3 hours. उसमें उन्होंने तो बहुत डिटेल में दिया हुआ क्या है, कौन से सेक्शन है, कैसे है, अवेयरनेस हमें देनी है, दैट वी विल डू. ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑलरेडी वी आर डूइंग, वी आर हैविंग फीमेल अटेंडेंट इन द बसेस, एंड 1 person will be appointed for this thing, single person to whom we can run and complain. Where is Monica? We have appointed you. Single person to contact is Monica. Right? Just Kiran, where is that policy? Give it to everybody.
read it and then sign it. You have to return it to us. All sections are given here. Read it very carefully. In case of offence, what kind of punishment could be given. Read this policy very carefully before signing. Then put your initials with date. Write your